بسم الله الرحمن الرحيم. کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ مسجد وہ عمارت جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، یہ بات دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمارے بھارت کی برادران وطن کی ایک بڑی اکثریت اس کے تعلق سے آج بھی بہت حد تک انجان ہیں۔ کئی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا نام جس شخص کے نام پر رکھا جاتا ہے اس میں اسی شخص کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثلا بابری مسجد کو آج بھی کئی لوگ بابر کا مقبرہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ غیر ملکی بابر چاہیے یا سودیشی رام۔ اس طرح کی اور بھی کئی غلط فہمیاں مسجد اور مدارس کے تعلق سے میڈیا میں عام ہیں۔ اگر 500 سال پہلے ہی ایودھیا میں کہیں مسجد کا تعارف کیا جاتا اور یہ ہمارے برادران وطن کو سمجھایا جاتا مسجد میں کسی راجہ مہاراجہ کی نہیں بلکہ ہم اسی ایک خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کا بھی مالک ہے۔ مسجد کو چاہے کسی کا بھی نام دیا گیا ہو، لیکن دنیا بھر کے مساجد میں صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس طرح کا مسجد پریچے کیا جاتا تو شاید ملک کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ خیر، دیر آئے لیکن درست آئے۔ اب جماعت اسلامی ہند کے شعبہ دعوت کی جانب سے ملک بھر میں مسجد پریچے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جسے دیگر مکتب فکر کی کچھ ملی تنظیمیں بھی اسے روح عمل لا رہی ہیں۔ الحمدللہ کچھ سال پہلے اس طرح کا ایک پروگرام کرناٹک میں ایک مقام پر لیا گیا تھا، لیکن بعض آفتہ میڈیا کے ذریعے اسے منظر عام میں لا کر دیگر تنظیموں کو بھی متحرک کرنے کا کام کیا وہ مہاراشٹر میں جماعت اسلامی ہند کی لاتور شاخ نے۔ اس کے بعد اسے مہاراشٹر کے لگ بھگ سبھی بڑے علاقوں میں اور کچھ چھوٹے مقامات پر بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی دلی کی جامع مسجد میں نو مسجد یعنی مسجد کو جانیہ کے نام سے پروگرام منعقد کیا تھا اور مسجد کا تعارف کروایا گیا تھا۔ اب اس نے گویا ایک تحریک کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ اپنی بات پہنچانے مختلف مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مواقع نہ ملے تو مواقع تیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ مسجد پریچے۔ مسجد کے مختلف مقامات اذان، نماز، منبر، محراب، وضو اور دیگر چیزوں کے تعارف کے حوالے سے توحید، آخرت، رسالت، اسلام کا نظام مساوات، نظام عدل و رحمت اور ساتھ ہی جماعت کا تعارف بھی ہو سکے گا۔ اس کے غیر معمولی نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسجد پریچے کے بعد سنیے ان برادران وطن کے یہ تاثرات۔ مسجد جو دیگلوم ناکے کے پاس ہے، اس مسجد کے اندر آج مسجد پریچے کا پروگرام لیا گیا ہے۔ جو یہ پروگرام میں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، اذان کیسی کس لیے دی جاتی ہے، اس کا مطلب سب کو سمجھایا گیا۔ بہت اچھی طریقے سے نماز پڑھ کے بتائی گئی۔ ہر شبد کا انہوں نے مراٹھی انواد کر کے سب کو اس کی معلومات جانکاری دی۔ کاریہ بہت اچھا ہو گیا ہے یہاں پر۔ بہت اچھا لگا۔ میں مسجد کے اندر کبھی نہیں گئی تھی، آج پہلی بار مسجد کے اندر آئی ہوں اور یہاں کی جو مجھے جانکاری ملی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ دیکھنا ہی تھا جیسا ہماری جو سوچ تھی ان کے پرتی، ہم سوچتے تھے کہ یہ لوگ شاید بھید بھاؤ کرتے ہوں گے، یہاں آنے کے بعد میں ایسا لگا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور ابھی آگے ہم بھی آنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں یہاں پہ، جیسا ہمارے بچے تو ویسے ہے ہی، سب کچھ سبھی اس میں، لیکن ابھی یہاں آنے کے بعد میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسجد پریچے کا انعقاد کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔
सबसे पहले तो लोगों की जहनी तैयारी कीजिए, खुसूसन उलमा और मस्जिद के लोगों की इस ताल्लुक से जहन साजी कीजिए। मसाजिद में बिरादरान वतन के दाखिले की शरई इजाज़त के ताल्लुक से उनको अहादीस और सीरत के हवाले दीजिए। कुछ नॉन मुस्लिम कैदियों को भी मस्जिद नबवी में बांध कर रखा गया था। सकीफ का एक नॉन मुस्लिम वफद मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ था। नजरान के ईसाई हजरात का भी एक गिरोह मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ था, जिन्होंने मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना, नमाज पढ़ते हुए देखा और इस्लाम को समझा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की एक हदीस का मफहूम है कि इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा से रिवायत है कि सकीफ का एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आया जब आप मस्जिद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुशरिकीन हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इससे यानी उनके दाखिले से ज़मीन नापाक नहीं होती। ऐसे कई हवाले इस ज़िमन में देकर मिल्लत की इस ताल्लुक से जहन साजी की जा सकती है। इसके अलावा हालात हाजरा से वाकिफ़ कराकर भी मस्जिद परिचय की अहमियत को वाज़ेह किया जा सकता है। मसलन मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक से बिरादरान वतन के जहन में गलत फहमियों का जो जहर भर दिया है, उसके इजाले के लिए उनको मस्जिद और मदारिस में बुलाकर उनका तारुफ करवाना ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है ये भी उन पर वाज़ेह किया जाए। इस ताल्लुक से मिल्लत को बेदार करें। ये न सिर्फ हमारा दावती फरीज़ा है, बल्कि ये हमारी बका का भी ज़रिया साबित हो सकता है। ये हमारी उखरवी नजात के लिए ज़रूरी है, ये वक्त का तकाजा भी है। इस तरह के प्रोग्राम जहाँ जहाँ हुए हैं, उनमें से कुछ प्रोग्राम की तस्वीर या वीडियो भी अराकीन मस्जिद कमेटी या मोहल्ले के कुछ बाअसर मिली शख्सियात को दिखाकर इस ताल्लुक से जहन साजी की जा सकती है। अगर नॉन मुस्लिम मर्द हजरात के मस्जिद में दाखिले के लिए मस्जिद में मुताल्लिकीन हजरात और मोहल्ले या गांव के लोग तैयार हो जाएं, तो नॉन मुस्लिम बहनों के दाखिले के ताल्लुक से भी उनको बेदार करने की कोशिश करें। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तनाज़ा फैल रहा हो तो सिर्फ मर्दों के लिए ही मस्जिद परिचय मुनक़िद करें। मोहल्ले या गांव के हालात इस प्रोग्राम के लिए अगर आप साजगार समझते हों तभी इस प्रोग्राम का इनेकाद करें, वरना खामखा तनाज़े का बाइस ना बने। जी फहम हजरात से इस बात को वाज़ेह करें कि काश हमने दरगाह के बजाय मसाजिद को हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनों के लिए खोल दिया होता तो आज इस मुल्क का नक्शा कुछ और होता। मिल्लत के लोगों को इस तरह प्यार से मोहब्बत से मस्जिद परिचय की अहमियत से आगाह कीजिए। इसके लिए खुतबात जुमा, हफ्तेवारी इज्तिमात, खिताबात आम और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खुसूसन उलमा, मुतवल्ली, मस्जिद के अराकीन, मिल्लत की बाअसर शख्सियात से इनफरादी मुलाकातों के ज़रिए बेदारी लाई जा सकती है। मिल्लत की ज़हनी तैयारी के बाद मस्जिद परिचय का मंसूबा बनाइए। सबसे पहले तो प्रोग्राम का एक नाजिम तय कीजिए, उसके बाद उसी की क़यादत में तारीख़ तय कीजिए। तारीख़ तय करते वक्त हमारे बिरादरान वतन के मैसर वक्त, उनकी सहूलत, फरागत को सबसे ज़्यादा अवलियत दें, ना कि अपने मुखर्रिर की अवेलेबिलिटी को, क्योंकि मुखर्रिर बदले जा सकते हैं। बाहर का कोई मुखर्रिर ना मिले तो कोई मकामी दाई भी मस्जिद का तारुफ करवा सकता है, लेकिन हमारे मधु हजरात की मौजूदगी इस प्रोग्राम की जान है। इसलिए आप अपने सामने अपनी जमात के शाया करदा अरबी इंग्लिश कैलेंडर के साथ कोई हिंदी कैलेंडर या इलाकाई ज़ुबान का कैलेंडर भी साथ रखिए। हो सके तो इसके अलावा एक बौद्ध कैलेंडर भी साथ रखिए। आपकी रियासत में अगर इससे हटकर भी कुछ तबकात के अपने कैलेंडर्स हों तो उनसे भी इस्तेफादा कीजिए। ये इसलिए कि कुछ कैलेंडर्स में कुछ तबकात के त्यौहार या जयंती वगैरह होते हैं तो कुछ तबकात के नहीं। त्यौहार के दिन प्रोग्राम ना रखें, वरना हाजिरी मुतासिर हो सकती है। कैलेंडर में कोई उपवास वाला दिन भी लिखा होता है, उस दिन भी प्रोग्राम अवॉइड करें। अगर उसके अलावा किसी दिन प्रोग्राम लेना नामुमकिन हो तो उनके उपवास के मुताबिक ही नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करें, और इसका जिक्र भी दावतनामे पर करें कि उपवास के लायक चीज़ें ही खाने या नाश्ते में होगी। हो सकें तो खाने का नज़्म रखें, क्योंकि इसकी वजह से ख़वातीन को घर जाकर खाना पकाने की फ़िक्र नहीं होगी और लोग अपने बाल बच्चों के साथ बेफिक्र होकर यकसुई के साथ प्रोग्राम में इस्तेफादा कर सकें। खाने का नज़्म मस्जिद में भी किया जा सकता है,
या उससे मुंसलिक अलग किसी दूसरी जगह भी किया जा सकता है। मकामी हालात के मुताबिक तय करें। प्रोग्राम का वक्त जितना मुमकिन हो मगरिब से 1 घंटा कब्ल यानी लगभग असर के बाद ही रखिए। अगर मुमकिन ना हो तो असर से 1 घंटा पहले रखा जा सकता है। वक्त इस तरह रखें कि बीच में बाजमात नमाज का नज़ारा बिरादरान वतन को दिखाया जा सके। प्रोग्राम को मुतय्यन वक्त पर ही शुरू कीजिए। अगर बिरादरान वतन वक्त पर ना आए हों तो जब तक तिलावत कुरान कोई हिंदी या रियासती ज़ुबान में हम्द या नात या इब्तिदाई कलमात वगैरह शुरू रखे जा सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम मुतय्यन वक्त पर ही शुरू कीजिए। दावतनामे पर इसका जिक्र कीजिए कि जमात के प्रोग्राम बर वक्त शुरू होते हैं। यह भी एक दावत है नज़्म और डिसिप्लिन की। मुकर्रिर का क़याम और दिगर सहूलतें, ताम का नज़्म, दावतनामे छपवाना, उनकी तकसीम करवाना, कुर्सियों का नज़्म और दिगर इंतज़ामात मुख्तलिफ कामों के ज़िम्मेदारान मुतय्यन कर लें। याद रखिए कि नज़्म बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हमारा नज़्म भी दावत का एक हिस्सा है। प्रोग्राम से कब्ल मौदू हजरात को तकसीम करने दावती लिटरेचर तैयार रखिए। अगर माकुल तादाद में ना हो तो मकतबे से मंगवाइए। खुसूसन अजान और नमाज पर नसीम गाजी साहब की लिखी किताब और मसनून दुआओं का हिंदी या इलाकाई ज़ुबानों में तर्जुमे की किताबें मंगवा कर तैयार रखिए। इसके बाद दावतनामे शाया कीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा मवाद लिखने के बजाय मुख्तसर अंदाज में मसाजिद को समझने की ज़रूरत पर ज़ोर देकर मवाद लिखिए। दावतनामा सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए फॉरवर्ड करने के बजाय खुद घर पर जाकर मुलाकात कीजिए। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत के ताल्लुक से गुफ्तगू कीजिए और पुरखुलूस अंदाज में प्रोग्राम की फैमिली के साथ दावत दीजिए। हो सके तो दावत देने के लिए मर्द व ख़वातीन का दिन भर का एक फील्ड वर्क प्रोग्राम रखा जा सकता है, जिसमें वफद की शक्ल में घर, दुकानें, दफ्तर जाकर दावत और दावतनामे दिए जा सकते हैं। दावतनामे के साथ कुछ लिटरेचर भी तकसीम कीजिए। दावत देने के बाद प्रोग्राम से कुछ घंटे पहले हमारे मदुइन हजरात को एक बार फ़ोन पर या SMS करके याद दहानी ज़रूर करवाइए। मस्जिद में पहले पहल दाखिले के लिए कुछ नॉन मुस्लिम काफ़ी हिचकिचाते हैं, इसलिए कुछ रुफ़क़ा मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएं और एक एक मेहमान को हाथ पकड़कर बड़े प्यार से अंदर ले आएं और एहतराम के साथ उनको अंदर बिठाएं। हो सके तो उनके बैठने के लिए अलग से कुर्सियां रखी जा सकती हैं। इस प्रोग्राम के 5 हिस्से हैं। पहला, इफ्तिताई कलमात। जमात की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ का तारुफ जो समाज से और बिरादरान वतन से ख़ास तौर पर जुड़ी हो। दूसरा हिस्सा, मस्जिद टूर यानी मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का तारुफ। तीसरा है दावती तकरीर। चौथा है तासुरात और सवाल और जवाब। पांचवा है नशर व इशाअत। मुकम्मल प्रोग्राम कॉपी इस तरह बनाएं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान से। इसमें खुसूसन सूरह निसा की इब्तिदाई आयात या कोई सूरह जो इंसानों के आपसी रिश्ते, भाईचारे को बयान करती हूँ उसकी तिलावत करें, या फिर मस्जिद या नमाज की अहमियत को वाज़ेह करती हूँ। उसके बाद उन आयात का तर्जुमा हिंदी या रियासती ज़ुबान में पढ़ें। उसके बाद अगर वक्त हो तो इब्तिदाई कलिमात और कोई हिंदी या रियासती ज़ुबान में हम्द या नात पढ़ें, वरना सीधे कलीदी खिताब की शुरुआत कर दें। कलीदी खिताब को 1.5 से 2 घंटे दीजिए, क्योंकि इसी कलीदी खिताब में मस्जिद का टूर और तारुफ भी करवाना है। उसके बाद सवाल जवाब और बिरादरान वतन के मुख्तसर एहसासात का मौका दीजिए। सबसे आखिर में कलीदी खिताब करने वाले मुकर्रिर को फिर इख्तितामी कलिमात का मौका दीजिए, ताकि बिरादरान वतन की जानिब से एहसासात में कोई बात काबिल तसीह आ जाए तो उसकी तसीह का मौका मैसर हो सके। उसके बाद किसी को भी सवाल या एहसासात या तकरीर का मौका न दें। दुआ के बाद प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। खाने की दावत रखी हो तो उसका भी ऐलान करें। नाश्ता या चाय वगैरह कलीदी खिताब के दरमियान तकसीम ना करें, बल्कि सवाल जवाब के दरमियान तकसीम करें। आखिर में जाते जाते उनको लिटरेचर तोहफ़तन तकसीम करें। अलग से बाहर स्टॉल भी लगाया जा सकता है। प्रोग्राम के बाद लिटरेचर के साथ कुछ ख़ास लोगों को जानमाज, खजूर और आब ज़मज़म तोहफ़तन दे सकते हैं। इससे ख़ास किस्म की खुशी और अपनायत वो लोग महसूस करते हैं।
प्रोग्राम में तालियां वगैरह बजाने से लोगों को मना करें, मोबाइल भी बंद रखने की हिदायत दें। ताम में हमारे अपने कुछ रुफ़ा भी साथ खाने के लिए बैठें तो उन लोगों को अच्छा लगता है। ताम वगैरह के बाद हंसी खुशी सबसे मिलकर बिरादरान वतन को रुखसत करें। आखिरी हिस्सा है नशर व इशाअत। प्रोग्राम के दरमियान ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग प्रोग्राम की शूटिंग करेंगे। इस ताल्लुक से मस्जिद कमेटी के लोगों को पहले ही मुतल्ला कर दें। मस्जिद हरम या मस्जिद नबवी में भी शूटिंग किए जाने का हवाला देकर आप उनको मुतमईन कर सकते हैं। पत्रकारों को मुकम्मल प्रोग्राम की न्यूज़ फ़ौरन बनाकर प्रेस रिलीज़ की ज़ेरॉक्स हाथ में दे दें। मीडिया में टाइम की बहुत अहमियत रहती है, इसका ख्याल रखें। हमारे कई लोग एक साथ मोबाइल से प्रोग्राम की शूटिंग करते हैं, वो ठीक नहीं है, इससे तवज्जो नहीं रहती। हमारा कोई एक रफ़ीक पूरे प्रोग्राम के मुकम्मल तौर पर शूटिंग कर लें और उसे दूसरे ही दिन एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। ताख़ीर होती है तो फिर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, इस बात को मलहूज़ रखें। कोई काबिल एतराज़ या काबिल वज़ाहत चीज़ प्रोग्राम के दरमियान हुई हो तो उसे एडिट कर दें। दूसरे दिन मीडिया ने प्रोग्राम को अगर कवरेज दिया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी तरग़ीब मिले। इस तरह मस्जिद परिचय का प्रोग्राम इनेकाद किया जा सकता है। ये तो चीज़ें थी मुंतज़िमीन हजरात के लिए। मुकर्रिर या इंस्ट्रक्टर की तकरीर या बयान इस तरह किया जा सकता है। इस बारे में एक मिसाली तकरीर हम इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे पार्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल मिनोअन उसी तरह तकरीर करना है ऐसा नहीं है। एक गाइडलाइन के तौर पर कुछ निकातें निशानदेही के तौर पर दी जा रही हैं। आप उन निकात को और भी ज़्यादा मिसालें या दलाइल के साथ मौसर अंदाज में पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसका दूसरा पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर ज़रूर देखिए, जिसका उन्वान है मस्जिद परिचय हिंदी में।